Good morning, student. Once again, we are discussed about to the related topics of to the bacteria. In this lecture, in this video, we will go now to the discussion the shape of to the bacteria, because the bacteria which are have to the diversity in the shape and a size. So first of all, we try to understand about to the what is the type of the bacteria, what is their base and to the their habitat, so that to the first base which describe to the bacteria in the different shape. First is the different types of the shape. On the basis of the different type of the shape, on the basis of, first is that on the basis of different type of different types of the shape, bacteria which is categorized into the different categories. First categories is that to the cocci. Cocci, what is the cocci? Cocci is the rounded bacteria. Cocci is the rounded bacteria, are the spherical bacteria. Cocci is the spherical bacteria. Spherical, which are found into the habitat, so that is the which come from to the Greek word coccus. Coccus. This is the cocci which form to the Greek word coccus. Coccus means fine particle, which means that coccus is the particle is the and very small, oval in shape or spherical in shape, so that is called to the cocci. Singular and plural are the used, coccus and the cocci. So cocci, which different categories are the subdivisions of the cocci, which are divided into the subcategories, just like to the first is cocci in the monococci, diplococci, diplococci, streptococci, tetrad, Sarcini, Staphylococcus, There are the categories of to the in the cocci bacteria which found into the different habitats, so that to the monococci. These are the classification which are explained on the behalf of to the their numbers, so that when the bacteria which found into the in the single, that is called to the monococci. That means there are the shape. This is the shape of to the monococci. These are like the bacteria is found to the monococci, that is the monococci bacteria, monococcus, micrococcum. The example is that micrococcum.
micrococcus or the micrococcum. Micrococcum bacteria example for that, when the bacteria is the singly is called to the monococci, example in the micrococcum. When the bacteria is found into the 2 in number are the in the groups, in the 2 in number, that is called to the diplo. Diplo means 2. So diplococci, Diplococcus pneumoniae, examples is that to the who's the bacteria which spread to the disease, which causing the disease up to the tuberculosis, pneumonia, which causing to the pneumonia, Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae. Diplococci. Single, double. Streptococcus, when the bacteria which found in the chain like, that's chain like. This type of the bacteria when found in this form, that is called to the streptococci. This streptococci, and the example is that Streptococcus lactis. Streptococcus example is that Streptococcus lactis. So this is the chain like. Tetrad, when the bacteria is the 4 in number, this like 4 in number, this form of the bacteria found in this at this group, in this type bacteria which arrange into the 4 in number, that is called to the tetrad. And the example is that, example of the tetrad bacteria is the Neisseria. Neisseria is found by the STD disease, sexual transmitted disease, which are spread by to the Neisseria. Example is that Neisseria. Sarcini, when the bacteria is found into the packets, when the bacteria 8 to the 64 in number, that is called to the Sarcini. 8 to the 16, packet like 8 to the 16. This type of the bacteria which found 8 to the 64 is called Sarcini. The example of the Sarcini is that to the Sarcina. And then finally Staphylococcus, which found in the group of the bacteria, is called the irregular. This form of the bacteria, this like when the bacteria is found into this is the group of this form of the bacteria which found into this type of the form of is called to the Staphylo aureus. Example Staphylo aureus.
तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं जो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मैंने इसको पहले भी बताया, और यहाँ पे अलग अलग उसका आधार है, उस आधार पे जो है हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहला आधार हमने लिया कि उसके शेप के आधार पे, तो शेप क्या है, डिफरेंट शेप होते हैं। तो पहला है कोकाई, स्फेरिकल बैक्टीरिया भी बोला जाता है उसको, जो ग्रीक वर्ड में कोकस का मतलब फाइन पार्टिकल होता है, कण उसको बोलते हैं। और ये फिर से डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं उस शेप के आधार, इसके नंबर के आधार पे, इसके पोजीशन के आधार पे। तो देखिए अगर सिंगल में है तो मोनोकोकाई इसका एग्जांपल है, मोनोकोकम। डिप्लोकोकस है तो डिप्लोकोकस निमोनियाई जो निमोनिया रोग फैलाता है वो 2 नंबर में होता है। स्टेप्टोकोकाई जो होता है वो अंजीर फॉर्म या एक चैन फॉर्म में होता है। स्टेप्टोकोकस लैक्टिस जो कॉड जो मिल्क से रिलेटेड होता है। टेट्राइड जो पैकेट में 4 नंबर में होता है इस प्रकार से अरेंजमेंट में। और निसेरिया जो कि यूटीडी मतलब एसटीडी सॉरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को जो फैलाता है, वन ऑफ द उसमें डिजीज फैलाता है निसेरिया। सार्सिनी जो होता है वो 8 to 64 8 से लेकर 64 जो है पैकेट लाइक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो वो सार्सिनी होता है। और जबकि इर्रेगुलर कई नंबर में एकदम पैकेट के लाइक जो है स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलो ऑरिस जो बैक्टीरिया होता है वो इस प्रकार से वहाँ ग्रुप में पाया जाता है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये कोकस बैक्टीरिया होता है। और यहाँ पर अब चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरा बैक्टीरिया, ये तो पहला था, पहला बैक्टीरिया था। अब दूसरे बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैसिलस। बैसिलस की बात करते हैं हम। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये है। और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बैसिलस मतलब रॉड की तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया इसी फॉर्म में होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड लाइक, इसीलिए इनको नाम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। बैसिलम या बैसिलस, ये बैसिलस बैक्टीरिया है। अब ये जो है इनके भी कई फॉर्म हैं। अब जबकि अगर सिंगल में उसी प्रकार से जैसे कोकम पाया जाता है, तो ये सिंगल फॉर्म में है तो इसको बोला जाता है मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलाई। या तो बैसिलाई हम जब सिंगल और प्लूरल की बात करते हैं तब बोलते हैं, तो बैसिलस, डिप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। मतलब यहाँ पे मोनो शब्द ना लिख के डायरेक्टली अगर हम बैसिलस क्यों लिखें, बैसिलस जब सिंगल नंबर में पाया जाए, देखिए किस प्रकार का, इस प्रकार का होता है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोला जाता है, और इस प्रकार का होता है तो वो बैसिलस होता है। ये एक सिंगल नंबर में पाया जाता है, ठीक है। अब जबकि ये जोड़ों में, पेयर में पाया जाए, विच आर फाउंड इनटू द पेयर में पाया जाए, तब बोलते हैं इसको इस प्रकार से हो तो इसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। अब जबकि ये स्टेप्टोबैसिलस भी कहलाता है, जबकि वो नंबर में, कई नंबर में जंजीर फॉर्म में हो जाता है। जब जंजीर फॉर्म में होता है, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। जबकि ये ग्रुप में हो जाए, देखें हम बना रहे हैं कुछ इस फॉर्म से, इस प्रकार का, इस तरीके से, मतलब ये जंजीर की तरह बना ले, तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। फॉर्म देखते जाइए, हम बाद में एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया के सारे फीचर्स की बात करेंगे। तो ये देखिए स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है जो कि डिफरेंट शेप के। अब हम तीसरे पे चलते हैं, जो कि तीसरा शेप है हमारा, वो है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा। तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया।
कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है और वो कॉमा की तरह होता है, जैसे एज लाइक द कॉमा, जैसे कॉमा लगाया जाता है उस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उस शेप का बैक्टीरिया होता है, तो इसलिए इसको कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। विब्रियो कॉलेरी जो कॉलरा रोग फैला जाता है, विब्रियो कॉलेरी रोग जो बैक्टीरिया है जिससे कॉलरा रोग फैलता है, तो वो बैक्टीरिया वो कॉमा शेप्ड होता है। देखें इस प्रकार का, तो कुछ इस प्रकार का जब बैक्टीरिया होता है तो वो विब्रियो कॉलेरी, ये कॉमा शेप्ड है, जैसे हम कॉमा लगाते हैं ऐसे, तो ये इसलिए इसको कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, ये तीसरे टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलरा रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार रहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। अब इसके बाद जो है हम तीसरे में चलते हैं, स्पाइरुलम बैक्टीरिया, स्पाइरलाई या स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया बोलते हैं, चौथे प्रकार का बैक्टीरिया है। तो चौथे प्रकार में स्पाइरुलम जो होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो हेलिकल टाइप होता है, हेलिकल टाइप है, और ये स्पाइरल बैक्टीरिया भी बोला जाता है। स्पाइरल, इसका आकार ऐसा होता है, स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। इसका शेप कैसे होगा, देखें इस प्रकार का शेप होना चाहिए, ये एज पे किनारे ऐसे इस तरीके के, अगर ये इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं तो स्पाइरलाई बोला जाता है, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। तो इस प्रकार का बैक्टीरिया होगा तो वो स्पाइरुलम या स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरिया न्यूमोमॉर्फिक होता है मतलब बहुत सारे फॉर्म को रखता है, या इसके बाद फिलामेंटस भी बैक्टीरिया हो सकता है। तो हमें ऐसा हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया इज हैव टू द न्यूमोमॉर्फिक, बैक्टीरिया इज अ न्यूमोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे शेप को रखता है। तो ये जो यूजुअली टाइप है वो शेप के आधार पे स्फेरिकल था, रॉड शेप था, स्पाइरुलम था, कॉमा शेप था, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। तो इन सब के आधार पे इसको न्यूमोमॉर्फिक बैक्टीरिया बोला जाता है। अब हम चलते हैं एक और दूसरे आधार की तरफ, और वो आधार होता है बैक्टीरिया के मोबिलिटी के आधार पे। जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरिया मैंने बताया आपकी बैक्टीरिया बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया इज अ डिफरेंट वेज ड्यू टू बैक्टीरिया का जो हम क्लासिफिकेशन करें तो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि शेप के आधार पे, उसके मोबिलिटी के आधार पे, उसके न्यूट्रिशन के आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे, तो अलग अलग चीज़ों हैं, ग्रुप ऑफ द बैक्टीरियाज हैं, और उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो बैक्टीरिया विच आर हैव टू द डिफरेंट बेसिस एंड क्लासिफाइड इटसेल्फ, क्लासिफाइड to the different categories so that to the in the another way। तो हम देखते हैं अब दूसरे बेस पे चलते हैं बैक्टीरिया के शेप के लिए। तो विच आर इन डिटेल अप टू द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इन द सेकेंड बेस इज द मोबिलिटी of the bacteria. On the basis of the mobility of the bacteria is classified into the different categories। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें वो अचल और चल हिंदी में बोला जाता है, मोबाइल भी होते हैं, नहीं होते हैं, और ये मोबिलिटी जो होती है वो फ्लैजेला के आधार पे होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला बैक्टीरिया विच आर मूव्स, तो सो दैट इज कॉल्ड टू द मूवेबल, तो वो मूवेबल होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड टू द मोबिलिटी। तो वो मोबिलिटी होती है उनके द्वारा, और इसके आधार पे तो फ्लैजेला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला, तो फ्लैजेला के आधार पे बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। तो हम इसको समझते हैं पहला। अब ये ट्राइकस, अभी क्या है, ट्राइकस शब्द जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस यहाँ पे फ्लैजेला के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि जो फ्लैजेला होता है वो
जीवाणुओं में जो बैक्टीरिया में, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया मोबाइल और इन मोबाइल दोनों होते हैं, जो अचल और नॉन मोबाइल जिसको बोलते हैं, मोबाइल एंड नॉन मोबाइल होते हैं। मोटाइल, मोटिलिटी, 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 मोबिलिटी, मोटिलिटी बोला जाता है फाइनली। तो इसमें क्या है, मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी दोनों प्रकार का है। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो है मोटिलिटी के आधार पे जो बैक्टीरिया है वो अट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस, इस प्रकार से ग्रुप बना है। तो अट्राइकस शब्द जो है, देखिए हमने कहा कि ये फ्लैजेला जब प्रेजेंस होता है तो वो मोटाइल बैक्टीरिया, और नहीं है तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। अब तो वो मोबिलिटी का मतलब गतिशील होना, तो यहाँ पे मैंने जो मोबिलिटी लिखा था तो उसको मोटिलिटी एक्चुअल में बोलते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के हैं। जो अट्राइकस है तो मैंने कहा ये फ्लैजेला को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे अ शब्द जुड़ गया है, अट्राइकस, इसका मतलब ये है कि those of the bacteria which are not have to the flagella, so that is called to the अट्राइकस। उस प्रकार का बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता तो वो अट्राइकस होता है। मतलब कि उसमें जो है केवल वो नॉन मोटाइल होता है। और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो पास्चुरेला पर्ट्यूसिस होता है। पास्चुरेला, जो पास्चुरेला जो बैक्टीरिया होता है एग्जाम्पल के रूप में, वो उसमें क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। और जिसमें एक भी प्रकार का, जैसे अगर हम माने तो इसमें इस प्रकार का एक भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं मोनोट्राइकस की तरफ। मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब सिंगल। हिंदी में बोला जाता है जब किसी बैक्टीरिया के एक सिरे पर केवल एक जो है फ्लैजेला पाया जाए तो उस प्रकार के बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए एक सिरे पे एक फ्लैजेला है तो इसको क्या बोला गया, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया बोला गया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो विब्रियो कॉलेरी एंड थायोबैसिलस बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलेरी एंड थायोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। दो मैंने नाम बताए, विब्रियो कॉलेरी एंड थायोबैसिलस। तो विब्रियो कॉलेरी मतलब कॉलेरा रोग, और थायोबैसिलस मतलब थायो जो बैसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम के रूप में वहाँ पे पाए जाते हैं, या थायोसाइनेट एंजाइम होता है खासकर। तो ये बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है, अब हम चलते हैं, जब ये तो हो गया एक तरफ, अब दूसरे तरफ चलते हैं लोफोट्राइकस में। तो लोफोट्राइकस का मतलब होता है, लोफोट्राइकस तीसरा है, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कैसे होगा, जब किसी बैक्टीरिया, व्हेन द बैक्टीरिया विच हैव टू द फ्लैजेला इन द ग्रुप ओनली वन साइड। देखिए जब किसी एक बैक्टीरिया पे उसके एक सिरे पे एक से अधिक जो है फ्लैजेला पाया जाए तो वो लोफोट्राइकस बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो बैक्टीरिया होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया। अब आपने 3 फॉर्म पढ़ लिए, अगले फॉर्म पे चलते हैं, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया पे चलते हैं।
एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया क्या होगा? जब किसी बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर जो है एक एक गुच्छा पाया जाए या एक एक ग्रुप पाया जाए, तो उस प्रकार के बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से, इसका जब हम डायग्राम बनाएं तो ये बैक्टीरिया है और इसके दोनों सिरे पर गुच्छा पाया जाए। देखिए दोनों सिरे पे अगर गुच्छे पाए जाएंगे तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसमें स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो इसका क्या कहते हैं, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल में नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो होता है। मैं इसके साथ साथ में आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बताते चल रहा हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया किस फॉर्म से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया की तरफ। चौथा टाइप का जो बैक्टीरिया है वो एक जो है एम्फीट्राइकस हो गया, ये चौथा, ये पांचवा। अब हम चलेंगे लास्ट में पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है उस प्रकार का जो बैक्टीरिया जिसके पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, संपूर्ण बॉडी में जो है ये कसाब या फिर फ्लैजेला पाई जाती हो वो। तो वो कैसे होगा, ये देखें। अगर इसके संपूर्ण बॉडी पर इस प्रकार का बैक्टीरिया है तो वो पेरीट्राइकस बैक्टीरिया पाया जाता है। और बहुत ही फेमस बैक्टीरिया ये होते हैं जो कि एस्क्रिचिया कोलाई और क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। एस्क्रिचिया कोलाई और क्लॉस्ट्रीडियम जो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, एस्क्रिचिया, इसका एग्जाम जो स्पेलिंग होता है वो दूसरा होता है, एस्क्रिचिया कोलाई होता है और क्लॉस्ट्रीडियम होता है। ये दो ग्रुप होते हैं और ये बड़े फेमस हैं, एस्क्रिचिया कोलाई और जो है एस्क्रिचिया कोलाई और क्लॉस्ट्रीडियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम जो ग्रुप होता है वो टिटनेस रोग फैलाता है इससे। तो अब देखें बहुत सारे ग्रुप ऑफ द बैक्टीरियाज हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग बेसिस के आधार पे कैटेगराइज किए गए हैं और उनका जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो उस आधार पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मोटिलिटी के आधार पे जो मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी जो होती है उनकी, तो वो नॉन मोटाइल और मोटाइल ग्रुप के होते हैं। तो इस आधार पे आपने देखा पहला क्या, अट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। 5 कैटेगरी बनी है मोटिलिटी के आधार पे, जहां पे मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो गए। तो ये क्या हो गए, मोबिलिटी के आधार पे, मोटिलिटी के आधार पे हो गए। तो अट्राइकस जो जिसमें कोई नहीं पाया जाता, पास्चुरेला पर्ट्यूसिस आता है, तो पर्ट्यूसिस जो रोग होता है इसी के माध्यम से फैलता है, वो नॉन मोटाइल होता है। दूसरे में मोनोट्राइकस। मोनो देखिए यहाँ पे ट्रिक है, मोनो मतलब सिंगल। अब यहाँ पे किसी एक सिरे पे, किसी वन साइडेड, तो वो एक फ्लैजेला पाया जाता है, विब्रियो कॉलेरी। आप सोचिए कॉलरा रोग फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो। उसके बाद लोफोट्राइकस इज द फाउंड इनटू द ग्रुप ऑफ द flagella into the one side is the Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas group of the bacteria which are included in that. And after that to the MP is the matlab both side up to the bacteria have to the group up to the flagella is the Nitrosomonas and Nitrobacter which participate into the nitrification processes into the molecular form of the nitrogen into the nitrite to nitrate. So that after that
peritrichus. When the bacteria which have to the flagella throughout the body is called to the peritrichus bacteria. In this category is involved to the Escherichia coli and to the Clostridium tetani. तो इस प्रकार की बैक्टीरिया जो है इस ग्रुप में पाए जाते हैं. तो ये सब क्या थे, मोबिलिटी थी, और मोबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं. तो जो फ्लैजेला होता है और जो जिसको हम अगर जब स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेलम कहेंगे उसको देख लेते हैं. तो इसमें 3 भाग होते हैं. फ्लैजेला जब हम बात करते हैं, फ्लैजेला कैसे होता है, वो प्रोटीन की बनी होती है, 4 to 5 माइक्रोन की होती है, और उसमें 3 जो है माइक्रोन मीटर होती है. और यहाँ पे हम फ्लैजेला की थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि हमने आधार बताया है. तो फ्लैजेला को देख लेते हैं. फ्लैजेलम कर लेते हैं. फ्लैजेलम, तो फ्लैजेलम जो होती है वो 4 to 5 माइक्रोन मीटर इन लेंथ होता है इसका, अगर बैक्टीरिया पे पाई जा रही है. फ्लैजेला नाम की प्रोटीन होती है क्योंकि ये जब इसका जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें प्रोटीन वो होती है, और ये फ्लैजेला नाम की प्रोटीन होती है. यहाँ पे फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन होती है. फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है जो इसमें पाई जाती है, और ये 3 भागों में डिवाइड होता है. मतलब जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं, बेसल बॉडीज, हुक और मेन फिलामेंट. बेसल बॉडीज फर्स्ट इसका जो फॉर्म है, बेसल बॉडीज बॉडी, दूसरा है हुक, और तीसरा है इसका मेन फिलामेंट. तो 3 इसके विशेष पार्ट होते हैं, बेसल बॉडीज, हुक और मेन फिलामेंट की बात करते हैं. तो हुक जो होता है, तो जैसे अगर फ्लैजेला की बात करेंगे, अगर ये बैक्टीरिया का बॉडी सरफेस है, यहाँ से जनरेट हुआ है, और ध्यान से देखें तो ये जिस जगह पे होगा इसको बेसल बॉडीज बोला जाता है. बेसल, यहीं से इसका जर्मिनेशन हुआ है. फिर यहाँ से आगे थोड़ा जब बढ़ेगा तो ये हुक्स होता है, और ये जो बाहर की तरफ निकल जाती है फिलामेंट कहलाता है. तो ये टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है, जबकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है जिसको देखा जाता है. तो फिलामेंट के फ्लैजेलम के बारे में मैंने बताया, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, 4 to 5 माइक्रोन मीटर होता है. 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडीज, हुक और मेन फिलामेंट होता है, जो कि यहाँ पे बाहर दिखाई पड़ता है, और जिसके आधार पे वो मोटाइल होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर जो है मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. इस आधार पे आपने देखा. अब इसमें जो है फिम्ब्री होते हैं, जो छोटे छोटे फिम्ब्री होती हैं, पिलस होती है, फिम्ब्री और पिलस बोलते हैं, और इनका काम होता है जैसे अगर थ्रू आउट द बॉडी है, आप समझिए बीच बीच में छोटी छोटी भी पाई जाती हैं. तो ये क्या करती हैं, एट द टाइम ऑफ द कॉन्जुगेशन वेयर आर द रिकम्बिनेशन प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन, देन टू द दीज आर द फिम्ब्री आर द पिलस फॉर्म टू द transmission of to the genetic material which make to the path. अगर हम Escherichia coli को लें एज ए एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें आप, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है ऐसे इस प्रकार का. अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोसेस में अगर पूरे बॉडी पे इसके फ्लैजेला है, तो ये जो पिलस होती है ये क्या कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोसेस में मदद करती है, जिसके आधार पे ये ट्रांसमिट करके जो है इसको भी अलग फॉर्म के बैक्टीरिया के रूप में बना देते हैं. तो ये जो इसके रूप में ये फिम्ब्री और पिलस भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इस आधार पे हमने देखा कि बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप होते हैं. उसके जो है पहला तो मैंने देखा कि उसका जो डिफरेंट शेप है, जैसे क्रोकस है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, विब्रियो है, कॉमा शेप बैक्टीरिया है, बैसिलस है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, स्पाइरुलम है, हेलिकल बैक्टीरिया है. तो उसके अलग अलग फॉर्म है, और हमने सारे फॉर्म डायग्रामेटिक रूप से आपको रिप्रेजेंट किया, विच आर रिप्रेजेंटिंग टू द डायग्रामेटिकली इन द डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू द न्यूमोफॉर्मिक बैक्टीरिया. After that, on the basis of to the motility, that is the bacteria are trichus, monotrichus, lophotrichus, amphitrichus, peritrichus. So that to the this kinds of the bacteria, and
we are also go now into the next videos to the gram positive and gram negative bacteria, the person gram, which are describe in detail to the what is the gram positive and gram negative bacteria. So that in the next videos we are just explain to the gram positive and gram negative. That's thank you.